Hello, dear children. How are you all? I hope you all are fine. A very happy new year to all of you and your family. Now, come on, let's get back to our work. And so, today we will be doing our social science subject, and we are going to start lesson number 5, In Search of Peace, Buddha and Mahavir. First of all, you'll write the date 5/12/2020. SAM 2. This is a SAM 2 course. Now we will start the lesson. Here you can see the heading shows In Search of Peace, Buddha and Mahavir. Means शांति की खोज में जाते हैं बुद्ध और महावीर. And Buddha and Gautam Buddha and Mahavir Swami both are very religious people जो जिन्होंने धर्म के लिए बहुत काम किया है. And we gain a lot of knowledge from them. So now we start. In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sectors in India. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious areas. Along with it, they also worked for removal of social inequality and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We'll try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. यानी हमने इसमें ये बताया जा रहा है कि धर्म के नाम पर सोशल और रिलीजियस सेक्टर्स में बहुत काम किया गया था और सोशल इविल्स जैसी जो समाज में जो बुराइयां होती है उनको निकालने के लिए सोशल यानी सामाजिक और धार्मिक काम किया गया था. तो ये सारी बुराइयां हटाने के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था वो थे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी हाउ दे वर्क फॉर ह्यूमैनिटी एंड एस्टैब्लिश्ड बाय देम. उन्होंने उसके प्रचार के लिए और उनका आगे सब लोग माने इसके लिए क्या किया, दैट विल बी सीइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड गौतम बुद्ध. वी ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म फ्रॉम जातक कथा and Buddhist texts Tripitaka, Sukta Pitak, Vinay Pitak and Abhidhan Dham Pitak. About 550 Jatak stories are associated with pre-birth of Buddha. यानी हमको ये सारी इंफॉर्मेशन गौतम बुद्ध की और बुद्धिज्म के जो जातक कथा होती है उसमें से हमको मिलती है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से जिनका नाम है त्रिपिटका और उसमें आता है सुक्त पितक, विनय पितक और अभिधाम पितक. और इसमें नियरली 550 स्टोरीज है जो गौतम से उनके जन्म के पहले की है. There was a kingdom called Kapilavastu in the foothills of the Himalayas while going towards Nepal. The Kshatriyas of Kapilavastu were called Shakyas. It was a republic. Shuddhodhan was the head of this republic. Maya Devi was wife of Shuddhodhan. Gautam Buddha was born in house of Shuddhodhan and Maya Devi in 566 BC. His childhood name was Siddharth. After few days of his birth, his mother Maya Devi died. Therefore, he was nurtured by Gautami Mahaprajapati, who was his फॉस्टर मदर. यानी गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था जो हिमालय के फुटहिल्स पर है. और जब हम नेपाल जाते हैं तो रास्ते में कपिलवस्तु आता है. और जो क्षत्रिय थे कपिलवस्तु के उनको शाक्यस बोला जाता था. वो एक रिपब्लिक था और उनके जो हेड थे उनका नाम शुद्धोधन था और माया देवी उनकी वाइफ थी शुद्धोधन की. और गौतम बुद्ध का जन्म 566 BC में हुआ था. उनके पापा का नाम शुद्धोधन और मम्मी का नाम माया देवी था. लेकिन उसके सिद्धार्थ के जन्म के बाद थोड़े टाइम में उनकी मम्मी मर गई. तो उनका ध्यान उनकी दूसरी मम्मी यानी गौतमी महाप्रजापति ने रखा था. From young age, Siddharth was associated with education and knowledge. Next to Kapilavastu, there was a monastery of a saint named Alarakalam. Alarakalam was his guru. Siddharth went to his ashram. Here he did meditation. Siddharth's father was worried as he continued to discuss knowledge and samadhi. He was worried if Siddharth would become a monk. Siddharth was married at a young age.
His wife's name was Yashodhara. He also had a son named Rahul. तो जब सिद्धार्थ छोटे थे तो सिद्धार्थ को एजुकेशन पढ़ाई के लिए उनके कपिलवस्तु के बाजू में ही एक मोनेस्ट्री यानी एक आश्रम जैसा था, वहाँ एक अलारा कलम करके सेंट थे, उनके पास पढ़ने के लिए भेजा। और वो बचपन से ही ध्यान करते थे और फिर ऐसी बातें भी बहुत करते थे जो धर्म से रिलेटेड है, समाधि से रिलेटेड है। तो उनके पापा को ये डर लगा कि ये बड़ा होके साधु ना बन जाए, इसलिए उसके पापा ने उनकी जल्दी शादी करवा दी और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। नाउ होम सैक्रिफाइस एंड साधना। At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state, and he became a saint, hermit in search of truth. One night he took his charioteer, Channa, and horse Kanthak and went to the river bank outside his state. Leaving his royal attire, he gave his all jewelry to Channa and ordered him to take Kanthak along with him and return to the palace. He himself wore the ascetic clothes of the hermit and walked towards the jungle. अभी जब वो 30 ईयर्स के थे उनके मन में ये विचार आया कि मुझे ये संसार, ये रॉयल फैमिली का त्याग करना है और मुझे कोई बड़ा साधु बनना है और मुझे सच्चाई को ढूंढने जाना है। एक रात उन्होंने अपने चैरियटर यानी जो रथ चलाता है उसको, उनका नाम छन्ना था, उनको बोला चलो मेरे साथ। फिर वो अपना हॉर्स रथ में बैठ के गए और नदी के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने सारे अपने रॉयल कपड़े वगैरह गहने सब उतार दिए, सब छन्ना को दे दिए और बोला कि तू वो मेरे हॉर्स को लेके यहाँ से चला जा महल में। और उन्होंने साधु वाले कपड़े पहन लिए और जंगल की तरफ चलने लगे। आफ्टर लिविंग हिज होम he went to Rajgiri and then to Puruvela. Here he started penance with 5 Brahmins. He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. Conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of human beings. Leaving 5 Brahmins, he decided to do penance alone. फिर वो वहाँ से घर छोड़ने के बाद वो राजगिरी गए, फिर वहाँ से पुरुवेला गए और वहाँ पे उन्होंने तप 5 ब्राह्मण के साथ बैठ के तप चालू किया। और फिर उन्होंने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और सब छोड़ दिया। लेकिन उनको फिर ऐसा लगा कि खाना छोड़ना, पानी पीने छोड़ना, शरीर को तकलीफ़ देने से मुझे सच्चा नॉलेज नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा और मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि शांति किससे मिलेगी। और फिर उन्होंने 5 जो उसके साथ ब्राह्मण्स से उनको छोड़ दिया और उन्होंने सोचा मैं अकेले अभी तप करने जाऊँगा। Sitting under the peepal tree of Bodhi at Bodhi Gaya, he started sadhana for truth and enlightenment. After many days of sadhana, he got knowledge of on the day of Vaishakhi Purnima. On acquiring knowledge, he became Buddha from Siddharth, and Buddha means conscious or wise. Later on, he was called गौतम बुद्ध। अभी उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बहुत तप किया, साधना की, सच्चाई को ढूंढने के लिए बोधि गया में। और वहाँ पे काफ़ी दिनों तक साधना करने के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको सच्चाई का ज्ञान हुआ और उन्होंने नॉलेज पा लिया और उसके बाद वो बुद्ध बन गए सिद्धार्थ में से। और बुद्ध मतलब कॉन्शियस यानी बुद्धिशाली और जो सब जानता है। और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को गौतम बुद्ध कहलाना स्टार्ट किया। प्रीचिंग्स यानी उन्होंने हमको क्या सिखाया। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड्स एंड for the first time he preached to those 5 Brahmins at Sarnath. These first preachings are called Dharmachakra Paravartan, and Buddha gave very simple sermon to get rid of the miseries of the world. According to him, there are 4 Arya truths. First, the world is full of miseries. Second, the cause of suffering is greed or strong desire, destruction
of suffering is renunciation of desire, that is the third one. Third truth, and fourth is adoption of octagonal path, that is Ashtanga Marg, eliminates desire. These four truths explained by Buddha are known as बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, ऑल्सो नोन एज सम्यक दर्शन। यानी बुद्ध ने चार, फिर वो प्रीचिंग करने के लिए वो सारनाथ गए। वहाँ पे उनके जो 5 फ्रेंड्स थे, ब्राह्मण फ्रेंड्स, उनको मिले और सबसे पहले उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया सारनाथ में। और बुद्ध के प्रीचिंग्स कुछ इस तरह से है कि उनका जो प्रीचिंग्स है, उनका जो सिखाना है, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। और बुद्ध ने क्या बताया? 4 आर्य ट्रुथ, यानी जो जीवन की सच्चाई है वो बताई कि दुनिया, पूरी वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरी, यानी सारी दुनिया बहुत तकलीफों में से घिरी हुई है। और द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिजायर। और सब दुनिया में तकलीफ क्यों है? क्योंकि सबको बहुत ग्रीड है, लालच है, और स्ट्रॉन्ग डिजायर, मुझे और चाहिए, ऐसा ही सब सोचते हैं। और आशा और इच्छा का कोई अंत होता नहीं है। फिर थर्ड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिनंशिएशन ऑफ डिजायर। उन्होंने सोचा कि अगर हम हमारे इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो हम हमारी तकलीफों को भी बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। और एडॉप्शन ऑफ ऑक्टागोनल पाथ, यानी जो सच्चाई है, अष्टांग मार्ग, यानी 8 जो रास्ते हैं जिससे हम सारी इच्छाओं को मार सकते हैं, वो इसमें बताया गया है। और ये 4 ट्रूथ जो उन्होंने, बुद्ध ने हमको समझाए, वो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के तौर पे जाने जाते हैं और उनको सम्यक दर्शन भी बोला जाता है। नाउ नो दिस: सम्यक साइट, सम्यक रिजॉल्व, सम्यक स्पीच, सम्यक डीड्स, सम्यक अर्निंग, सम्यक एक्सरसाइज, सम्यक memory, सम्यक समाधि, एंड सम्यक इज अ संस्कृत वर्ड। सम्यक मीन्स प्रॉपरली, यानी हर एक चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। सम्यक साइट यानी अच्छा देखना, अच्छा सोच, रिजॉल्व करना, कुछ अच्छा करना, अच्छी वाणी बोलना, अच्छे काम करना, और अच्छी तरह से पैसे कमाना, और अच्छी एक्सरसाइज करना, यानी जो हमारे लिए अच्छा है वो करना, अच्छी मेमोरीज होना, और ध्यान करो, पूजा करो, जो भी करो वो भी अच्छी तरह करना चाहिए, यानी जो भी काम करो प्रॉपरली होना चाहिए। सो दीज ऑल आर 8 octagonal paths given by, or Ashtanga Marg given by Gautam Buddha.